Beno, Namo Buddhaya, Jai Bhim. Namo Buddhaya, Jai Bhim. So we're coming to the end of our long journey. तो हमारी लंबी यात्रा के अंतिम चरण पर हम आज है. And let's just recapitulate what we've covered so far. और आइए इस बातों को देखें कि किन किन बातों की हमने चर्चा की. Because we've really come to the pinnacle of our talk. क्योंकि इस मालिका के चरण सीमा पर अभी हम हैं. So we started off by reflecting on the painful situation that many people experience ourselves being in now. तो हमने इस बात से शुरुआत की थी कि इन बातों का हम चिंतन कर रहे थे कि कितनी घृणास्पद या दुख पीड़ादायक परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं. Among many of you, we know that there's a great deal of frustration, of disillusionment, of even despair. आप में से कई लोगों को इन सब परिस्थितियों का दुख होगा. कुछ लोगों ने आशाएं खो दी होगी. Even of fear. या डर भी होगा, भय भी होगा. And that's quite understandable. और वो समझने लायक है, वो समझ सकते हैं. But we reminded ourselves of what Baba Saheb had said in 1956 to the World Fellowship of Buddhist Conference in Kathmandu. लेकिन हमने अपने आप को याद दिलाई कि बाबा साहब ने 1956 में काठमांडू में क्या कहा था. He was addressing the audience there on the topic of the Buddha or Karl Marx. वहाँ के प्रेक्षकों को बाबा साहब संबोधित कर रहे थे बुद्ध या कार्ल मार्क्स इस विषय पर. And at that time, of course, Buddhists in Asia were facing the communist onslaught. और उस वक्त एशिया में सभी जो है बौद्ध राष्ट्र थे वो जो कम्युनिज्म है, साम्यवाद है, इसका सामना कर रहे थे. And many Buddhists were being wiped out and suppressed and so on. और कई सारे बौद्धों को नष्ट किया गया या उनका उत्पीड़न किया गया. So it was a time of great despair for Buddhists. तो बौद्ध लोगों के लिए सभी वो जो काल था वो उत्पीड़न दायी था. So people were very interested indeed in a comparison of the Buddha and Karl Marx and an answer to the question, which should we follow? तो बौद्ध लोग तब लोग निराश थे और सब लोग ढूंढ रहे थे कि रास्ता क्या हो सकता है बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बीच में. Baba Sahib identified the principal difference between Karl Marx and the Buddha is that the Buddha taught that we have to change the mind of people voluntarily. और बाबा साहब ने इस फर्क को जाना, पहचाना और लोगों को बताया कि हमें स्वेच्छा से अपने मन को बदलना है, ऐसा बुद्ध कहते हैं. You can't force people to change their minds. हम लोगों को जैसे मार्क्स बताते हैं वैसे हम लोगों को दबाव नहीं ला सकते बदलने के लिए. Through force, through violence, you can overthrow an existing social order and you can replace it with another. दबाव से और हिंसा से जो वर्तमानकालीन जो परिस्थितियाँ व्यवस्था है उसको हम ध्वस्त कर सकते हैं. But you don't change the moral climate. लेकिन जो नैतिक वातावरण है उस नैतिक वातावरण को हम नहीं बदल सकते. So you don't get a just society. तो फिर हम जो न्यायमूलक जो सच्चा समाज है उसे हम नहीं लेते. You just replace one kind of injustice for another. आप एक अन्याय को दूसरे अन्याय से बदलते हो. So Baba Sahib said we must transform society by transforming the mind of individuals within society. तो बाबा साहब कहते हैं कि हमने निश्चित ही समाज में जो व्यक्ति है उनके मन परिवर्तन करके हमने समाज को बदलना चाहिए. And we do this by following the path of the Buddha. और हम यह करते हैं बुद्ध का मार्ग अपनाकर. And he affirmed very strongly his own confidence in that path. और उनका जो आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास को बाबा साहब ने अपने आत्मविश्वास को ठोस तरीके से पुरजोर तरीके से इस मार्ग पर रखा. He said it was the surest way, of that he was convinced. उन्होंने कहा कि यह एक निश्चित मार्ग है जिससे मेरी पूर्ण सम्मति है. So we must remember Baba Sahib at that time. तो उस वक्त
हमने बाबा साहब की याद रखनी चाहिए. What we're trying to do is very difficult, and it's going to take a long time, many years, many generations, but it's the best and surest way. हो सकता है इसको काफ़ी वर्ष लगे, काफ़ी पीढ़ियाँ लगे, लेकिन यही सर्वोत्तम मार्ग है और यही निश्चित मार्ग है. Doesn't mean we shouldn't do our best to challenge injustice and so on. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसको हम चेतावनी ना दें. But the most important thing is the deeper change that we need to bring about. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि जो गहरे बदलाव है, उस बदलाव को हमें लाना है. So we saw we can draw a great deal of strength from Baba Saheb's own position at that time. तो हम देखते हैं कि उस वक्त बाबा साहब से या अब भी हम बाबा साहब से एक विशेष और महान बल अर्जित कर सकते हैं. And we then looked at the force, the power, the strength that we can draw on for our task. और फिर हमने देखा कि वह जो बल है वह हमारे कार्य के लिए कौन सा बल है जिसे हम अर्जित कर सकते हैं, ला सकते हैं. We've seen again and again, I've stressed this so much, that we can't call upon any God. और इस बात को मैंने बार बार जोर देकर कहा है कि हम किसी ईश्वर को नहीं बुला सकते, भगवान को नहीं बुला सकते. What we rely upon is the principle of karma. जिस बात के ऊपर हम निर्भर होते हैं वह है कर्म का सिद्धांत. We rely on the natural law of karma. जो नैसर्गिक नियम है, उस नियम के ऊपर हम निर्भर करते हैं. We work with that law and it will definitely bring its results. और हम उस कार्य के ऊपर निर्भर होते हैं और निश्चित ही वह काम करता है. And that law is a moral law. और वह जो नियम है वह नैतिक नियम है. It states the relationship between conscious willed action. यह संबंध प्रस्तापित करता है हमारे सचेत जो ऐच्छिक कर्म है, कृतियाँ है, इसके ऊपर. The relationship between that and the effects that it has. इसका संबंध क्या है हमारे कर्म का और फिर इसके परिणामों के ऊपर. The effects it has in the world. इसके परिणाम जो दुनिया में होते हैं. The effect that the world then has back on us. और इसका परिणाम जो दुनिया पे हुआ है उसका परिणाम हमारे ऊपर क्या होता है. But especially the change that takes place in our own minds. और निश्चित रूप से ऐसा बदलाव जो हमारे मन में आता है. What we've seen is that through karma we reconstruct our own mind. कर्म से हम क्या करते हैं, हमारे मन को पुनर्निर्मित करते हैं. First of all, we see that what happens is that we purify our minds. सर्वप्रथम हमने देखा कि हम क्या करते हैं, अपने मन को हम शुद्ध करते हैं. So that we get rid of the kleshas. तो जो क्लेश है उन क्लेशों से हम मुक्त होते हैं. So that our minds are pure and bright and clear. तो हमारे मन जो है वह शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं. And as a result of that, our actions will be skillful. और उसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि हमारे जो कर्म है वह कुशल होते हैं. And as a result of that, they'll contribute to a better society. और उसका परिणाम स्वरूप हम अच्छा समाज निर्माण करते हैं. They will really begin to change society if many people take on skillful behavior on the basis of a transformed mind. और उसके आधार पर हम कई लोगों के मन जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं. So yes, we purify the mind by developing skillful action. तो हम हमारे मन का शुद्धिकरण करते हैं अपने कुशल कर्मों से. And we use the precepts, the 5 precepts, as a guide to that ideal behavior. और शील जो है, यह शील हमारा एक मार्गदर्शन मार्ग हम अपनाते हैं. We use them like a mirror so that we can see ourselves. शीलों का आईना हम इस्तेमाल करते हैं अपने आप को देखने के लिए. So we make sure that we're really convinced of the truth of karma. तो हम वाकई में इस बात से सम्मत होते हैं कि हम कर्म की जो सत्यता है उसे पहचानते हैं. We make sure that we're really convinced in the truth of karma. हम इस बात को देखते हैं कि हम सत्य से पूरी तरह
सम्मति में है, that we understand what it really means, वाकई में हम समझते हैं कि कर्म क्या है, and then we apply it to ourselves, to our own lives, by looking in the mirror of the 5 precepts. तो इस कृतियों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं और इसके शीलों के आईने में हम देखते हैं. And that will produce a great revolution in our minds. और यह हमारे मन में, हमारे विचारों में एक क्रांति लाता है. As we gradually get rid of the kleshas, जैसे हम धीरे धीरे क्लेशों से मुक्त होते हैं, our minds will become more and more pure, more and more bright, हमारा मन जो है अधिक तेजस्वी और शुद्ध होता है, more emotionally positive, भावनिक रूप से अधिक विधायक होता है, and that will have an effect on our actions. और इसका भी परिणाम हमारे कृतियों के ऊपर, कर्मों के ऊपर होता है. This is the basis of everything. तो यही बुनियाद है हर चीज की. The practice of Shila is the basis for all transformation. शीलों का आचरण ही सभी परिवर्तन की नींव है. Because it works with this natural principle of karma. क्योंकि यह जो कर्म के जो नैसर्गिक नियम है उसके साथ मेलजोल खाता है, उसके साथ काम करता है. But we saw that Shila on its own is not enough. लेकिन हमने देखा कि मात्र शील ही पर्याप्त नहीं है. Through Shila we're working on our minds through working on our behavior. तो हमने देखा कि शीलों के द्वारा हम हमारे मन के ऊपर काम करते हैं, जो हमारे बर्ताव के ऊपर परिणाम करता है. And working in this way our minds will emerge as better. और हमारे मन के ऊपर कार्य करने से हम इससे अच्छा होते हैं. But we need to go deeper. लेकिन इससे भी गहरा हमें जाना है. We need to turn back and work directly on the mind itself. तो हमें वापस घूमना है और हमारा मन अधिक अच्छी तरह कैसे काम कर सकता है इसे देखना है. So this deeper work is the work of samadhi or dhyana. तो जो गहरा काम है वह है समाधि का है, ध्यान का है. And we saw that once we work on our minds directly through meditation, they begin to get even more bright, even more pure. तो जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो हमारा मन अधिक गहरा होता है, अधिक शुद्ध होता है. They become much stronger. वह अधिक मजबूत होता है. So that we can do what needs to be done with much greater conviction, much greater energy. तो जो कुछ भी हम करते हैं वो अधिक कटिबद्धता के साथ करते हैं, अधिक ऊर्जा के साथ करते हैं. If we practice the mindfulness of breathing, it unifies our energies. अगर हम आनापान सति का अभ्यास करते हैं तो हमारे शक्ति, हमारे ऊर्जाओं को वह एकत्रित करता है. It releases blocked energy. जो ऊर्जा कहीं रुकी हुई है, बंद है, उसे वो खोलती है. It makes our energies brighter and clearer. हमारे ऊर्जा को यह अधिक स्पष्ट और तेजस्वी करता है. If we practice Maitri Bhavana, we become much more emotionally positive and much more strongly connected with other people. और अगर हम मैत्री भावना का सराव करते हैं तो हम अधिक रूप से विधायक होते हैं. And we saw that we go through a sequence of ever more wonderful mental states. और हमने देखा कि इस श्रृंखला, यह जो श्रृंखला है वह कितनी सुंदर और अद्भुत होते जाती है. We remember we went from pramodya, which is joy, to priti, which is rapture. हमने देखा कि प्रमोद से जो खुशी है, आनंद है, उससे हम प्रीति की ओर जाते हैं जहाँ पे हमें अधिक उल्लास होता है. We go from priti to prashrabdi. हम प्रीति से प्रशब्दि की ओर बढ़ते हैं. Prashrabdi, which means this serene, calm, very, very deeply positive state. प्रशब्दि वह है जो अधिक तरल और शांत मनोवस्था जो होती है. And from prashrabdi we go to sukha. प्रशब्दि से हम सुख की ओर बढ़ते हैं. Sukha, which is a happiness on a very high level indeed. सुख जो है वो काफी उच्च स्तर का आनंद है. And that sukha gives way to samadhi. और यह सुख जो है वह समाधि की ओर जाता है. Of course, that sukha is quite different from our ordinary worldly sukha. निश्चित यह सुख जो है वह जो सर्वसामान्य जो हम सुख कहते हैं उससे बिल्कुल भिन्न है. Because it's not dependent on external circumstances. क्योंकि यह जो बाह्य जो परिस्थितियां है उन परिस्थितियों के ऊपर यह सुख निर्भर नहीं होता. And samadhi is the complete unification of the mind. और समाधि जो है यह पूर्णतः मन की एकाग्रता है. The finest possible
refinement of the mind. मन की उच्च तरलता और शुद्धता. But we saw this is not enough. लेकिन हमने देखा यह भी पर्याप्त नहीं है. As samadhi takes us a very long way indeed. समाधि हमें काफी दूर तक ले जाती है. It produces a very deep and very powerful change in the mind. यह हमारे मन में बहुत ही प्रबल ऐसे बदलाव लाती है. But it's not permanent, it's not irreversible. लेकिन यह नित्य नहीं है. यह इसकी पीछे हट नहीं होगी, ऐसा नहीं है. If you don't make a consistent effort, it just falls away. अगर हमने प्रयास नहीं किए तो हमारी पीछे हट हो सकती है, हम वापस आ सकते हैं. And that's what we experience even when we do a little bit of meditation. यही होता है जब कभी भी हम थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं. We can keep our minds very high, but as soon as we stop, down they come. हम ध्यान करते हैं, अपनी मनोवस्था ऊपर जाती है. जैसे हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, वो नीचे आ जाती है. And in Buddhism, we're not meditating in order to have nice mental states. बौद्ध धर्म में हम बहुत अच्छे मनोवस्था हो या अच्छा महसूस हो ऊपरी तरीके से, उसके लिए हम ध्यान नहीं करते. We're meditating in order to change ourselves, in order to change the world. हम ध्यान इसलिए करते हैं अपने आप को बदलने के लिए और दुनिया को बदलने के लिए. Meditation is a training. ध्यान जो है यह प्रशिक्षण है. Just as an athlete trains on the track or with weights or anything like that. जैसे कोई पहलवान या कसरत करने वाला व्यायाम करके कसरत करके अपने बाजुओं को, स्नायुओं को मजबूत करता है. So we train the mind through Shila and Samadhi. वैसे ही हम अपने मन को शील और समाधि से प्रशिक्षित करते हैं. But if we want these changes to be permanent, then we need to go further to prajna. लेकिन अगर हमें यह बदलाव नित्य चाहिए, निरंतर चाहिए, तो हमें प्रज्ञा की ओर बढ़ना होता है. And prajna we saw is this direct, immediate understanding. और हमने प्रज्ञा को देखा. प्रज्ञा जो है यह प्रत्यक्ष समझ है चीजों की. It's not intellectual. यह बुद्धिवादी नहीं है. It's not to do with words. यह शब्दशाह या शाब्दिक नहीं है. You just see. वो यानी चीजों को आप प्रत्यक्ष रूप से सीधा देखते हो. You see the truth of things. चीजों का जो वास्तविक रूप है, जो सत्य है, उसे आप देखते हो. And you see especially the truth that there is no fixed reality anywhere. और आप इस सत्य को देखते हो कि कहीं भी ऐसा नित्य पक्का स्व नहीं है. And you do this through a process of immediate examination of experience. और आप इसे देखते हो आपके अनुभवों का परीक्षण करके. We were looking in the last talk at the way in which we seek something permanent in our own bodies and minds that we could say that's me. हम देखते हैं कि हमारे शरीर में या इन सभी चीज़ों में ऐसी कोई भी पक्की बात नहीं है जिसे कह सके कि यह मैं है. But we recognized, or at least we began to recognize, there's no such fixed reality anywhere. हमने इस बात को पहचानना शुरू कर दिया है कि ऐसा कोई भी पक्का स्व, ऐसी कोई भी सत्यता चीज़ों में नहीं है. The central insight of Buddhism is that whatever arises in dependence on conditions and passes away again. बुद्ध का सर्वरूप सार या दृष्टि यही है कि जो भी चीज़ें उत्पन्न होती है वह विशिष्ट परिस्थितियों पे उत्पन्न होती है. जब वह विशिष्ट परिस्थितियाँ चली जाती है तो वह उत्पन्न हुई चीज़ भी नष्ट हो जाती है, चली जाती है. And that's true of everything that goes to make up what I think of as me. और यही चीज़ें सभी चीज़ों के लिए लागू है, उसके लिए भी लागू है जिसे हम ऐसा सोचते हैं कि यह मैं है. I am a river. मैं एक नदी हूँ. I'm a river of processes, none of which remain the same. मैं एक ऐसी नदी हूँ, इस प्रक्रिया की नदी हूँ जहाँ कोई भी बात सरीकी या समान नित्य रूप से नहीं रहती है. So just as you can't grasp a river, I can't grasp anything that I can say is me. जैसे मैं नदी को नहीं पा सकता, वैसे ही ऐसे किसी भी चीज़ को मैं नहीं पा सकता जिसे मैं कह सकूं कि मैं है. If I try to put my hands in the river and grasp it,
it just slips through my fingers. अगर मैं नदी को जाके पकड़ने की कोशिश करूं तो वह मेरे हाथों से छूट जाएगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं So आएगा। there's nothing to grasp and say that's me. तो ऐसी कोई भी बात हम पक्की पकड़ कर नहीं रह सकते जिसे हम कह सके कि यह मैं है या मेरी है। But we have a very strong habit of doing so. लेकिन हमारी ऐसी प्रबल प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं, ऐसा ही सोचने की, ऐसा ही करने की। And because we have that habit, we suffer. चूंकि हमारी यह प्रवृत्तियां है, हमारी यह आदतें हैं, हम दुखदाई होते हैं। This, you remember, the Buddha said, is the fundamental cause of suffering. आपको याद होगा बुद्ध ने कहा है कि बुनियादी कारण क्या है दुख का? The deepest sense of suffering comes from the clinging onto self. बुद्ध ने कहा है कि इन सभी दुखों का जो गहरी जड़ है वह है स्व आसक्ति। And it's that he let go of at Bodh Gaya. और इसी स्व आसक्ति को बुद्ध ने त्यागा बोध गया में। Sitting under the Bodhi tree, he finally saw that there's no fixed self. बोधि वृक्ष के तले बोध गया में बैठे हुए बुद्ध ने देखा कि ऐसा कोई भी नित्य स्व नहीं है। And he experienced a completely new state of consciousness. और इन्होंने जो नई चेतना है उस चेतना का अनुभव किया। He experienced a state of consciousness that did not base itself upon I. उन्होंने ऐसी चेतना की खोज की जिसकी बुनियाद स्व नहीं है। Something quite new in the universe. विश्व में यह एक नया अनुभव था। It was something that he discovered for the first time in human history. मानवीय इतिहास में पहली बार उन्होंने इसकी खोज की। And it's the basis of his insights and his teachings. और यही बुनियाद है उनके दृष्टि की, उनके शिक्षाओं की। So this new state of consciousness is what we call the mind of the Bodhisattva. और यह जो नई चेतना है, नई गुणवत्ता की जो चेतना है, उसे हम कह सकते हैं बोधिचित्त। The mind of the Bodhisattva. मन का बोधि, ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं बोधिसत्व का मन। Or what we call Boddhichitta. या हम उसे कह सकते हैं बोधिचित्त। The mind of Bodhi, of enlightenment. ऐसा मन जिसने बोधि प्राप्त की हो। Bodhi in this sense means free from self-clinging. बोधि का यहाँ अर्थ यह होता है स्व आसक्ति से मुक्ति। But to be free from self-clinging, to be free from selfishness, is to be compassionate. लेकिन जब हम स्व से मुक्त होते हैं या स्व से मुक्ति का अर्थ यह होता है कि हम करुणावान हो। What prevents me from feeling compassion for you is my attachment to myself. जो कुछ भी मुझे रोक रहा है आपके प्रति करुणावान होने से वह है मेरी स्व आसक्ति। Because I'm concerned with myself, not with you. क्योंकि मैं अपने आप से ही इसका लगाव रख रहा हूँ, ना कि आप से। That's how you can have such an unjust system as caste. इसीलिए ऐसी अन्यायमूलक व्यवस्था होती है जिसे हम कह सकते हैं जाति व्यवस्था। Everybody's protecting themselves. हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित चाहता है। They join together in a caste to protect themselves. वो अपने आप को जोड़ते हैं जाति के आधार पर अपने आप का संरक्षण करने के लिए। But then they don't feel anything for people who are suffering. तो इसीलिए ऐसे जमाव का अनुभव जो होता है, जो लोग उत्पीड़ित हैं उनके बारे में वो सोच नहीं पाते। That creates an evil system, an evil society, a bad society. और यह जो है यह शैतान भरा समाज निर्माण करता है, बुरा समाज निर्माण A करता है। society dominated by injustice and inequality and so on. ऐसा समाज जो अन्याय और असमानता से भरा हुआ हो। So if we can get rid of our clinging onto self, compassion flowers. और अगर हमने अपने स्व से मुक्ति पाई तो फिर करुणा बहने लगती है। And this is the supreme flower of the Buddha Dhamma. और यही बौद्ध धम्म का सबसे सुंदर फूल है, पुष्प है। One who follows this path of the Buddha becomes compassionate. जो भी बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करता है वह करुणावान बनता है। You could say that compassion isn't something they have, it's something they are. कंपैशन यहाँ ऐसा अर्थ नहीं होता है कि यह ऐसा व्यक्ति जिसके पास करुणा है,
यह इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति ही करुणा होता है, that's their very nature. वही उसका स्वभाव होता है. Replacing selfishness is compassion. स्वार्थ को त्यागना या स्वार्थ को बदलना, स्वार्थ को नष्ट करना करुणा से. So everything that the Bodhisattva does is motivated by compassion. हर चीज जो बोधिसत्व करता है वह करुणा से प्रेरित होती है. Everything that the Bodhisattva does is done to help others. हर चीज जो बोधिसत्व करता है वो औरों को मदद करने के लिए करता है. The Bodhisattva has no self-concern. बोधिसत्व को अपने यानी अपने आप का लगाव नहीं होता. This is what we're aiming at. यही हम इसका हम उद्देश्य रखते हैं, वही हमारा उद्देश्य होता है. We're aiming to get rid of our self-clinging so that compassion flowers spontaneously within us. तो हम अपने आप को we're aiming to get rid of our self-clinging so that compassion flowers spontaneously within us. हम अपने आप से स्व की मुक्ति करते, स्व से मुक्त होते ताकि करुणा जो है वो अपने में खिले. This is our aim. यही हमारा उद्देश्य है. When we've achieved this, we've completed the most important stage of the path. जब हमने यह हासिल कर लिया है तब मार्ग का सबसे उच्चांक या परिपूर्ण बिंदु हम हासिल करते हैं. From this point on, everything just flowers spontaneously. यहाँ से परे जो है हर चीज त्वरित होती है, सहज होती है. No effort is required to act spontaneously, compassionately. कोई भी प्रयासों की जरूरत नहीं होती है करुणा लाने के लिए या करुणा से पेश आने के लिए. So when we talk about Dr. Babasaheb Ambedkar's Bodhisattva, it's this that we're referring to. तो जब हम बाबा साहब को बोधिसत्व करके संबोधते हैं तो यही इसका मतलब होता है. When we examine his life, we see that he lived for the sake of others. हम उनके जीवन का निरीक्षण परीक्षण करते हैं कि वे औरों के लिए ही जिए. We see that his every effort was to liberate his poor and downtrodden brothers and sisters. उन्होंने हर कदम अपने समाज में जो लोग उत्पीड़ित हैं उनके मुक्ति के लिए लगाया. But he wasn't just concerned with those from the same background as him. लेकिन उनका जो लगाव था वो केवल उन्हीं के ही जाति के लोगों के लिए ही है, ऐसा नहीं था. As his life went on, he reached wider and wider. जैसे जैसे वो अपने जीवन में बढ़े कई लोगों तक बाबा साहब पहुंचे. To begin with, his vision was of liberation of the oppressed masses. निश्चित रूप से उनकी जो दृष्टि थी या उनके पहले प्रयास थे जो लोग उत्पीड़ित है समाज में उनको मुक्त करना था. By the end of his life, his vision was one of Prabhupada Bharat. अंततः उनके जीवन के अंत में जो वो दृष्टि बताते हैं वो प्रबुद्ध भारत की बताते हैं. Maybe one could even say wider than that, Prabhupada Vishwa. हो सकता है इससे भी हम आगे जाए और कहे कि प्रबुद्ध विश्व का वो सपना संजो रहे थे. That was the vastness of his vision. यही उनके दृष्टि की विशालता है. Because Prabhupada Bharat, Prabhupada Vishwa is one based on compassion. क्योंकि प्रबुद्ध भारत और प्रबुद्ध विश्व करुणा के बल पर ही होगा या आधारित होगा. It's an India of liberty, fraternity and equality. यह भारत होगा समता, स्वतंत्रता और बंधुता का. A world of liberty, equality and fraternity. और सारी दुनिया समता, स्वतंत्रता और बंधुता की होगी. This was his aim. This was his life force. और यही उनका उद्देश्य था, यही उनके जीवन का बल था. This is what he lived for. इसी के लिए वे जिए. So throughout Buddhist history, there have been many bodhisattvas. तो बौद्ध इतिहास में ऐसे कई बोधिसत्व हुए. You could say that the Buddha is in a sense the supreme bodhisattva. एक दृष्टिकोण से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बुद्ध जो है वो सबसे महानतम बोधिसत्व है. He's the bodhisattva who achieved the final stage of the path. वो ऐसे बोधिसत्व है जिन्होंने मार्ग का अंतिम चरण हासिल कर लिया है. And opened up the path for people where there was no path.
और उन लोगों के लिए उन्होंने मार्ग खुला किया जिन लोगों के पास मार्ग नहीं था. But because the Buddha's teaching is effective, there have been many bodhisattvas down the ages. चूंकि बुद्ध की शिक्षाएं प्रभावी थी, इतिहास में जैसे जैसे इतिहास ढलता गया कई बोधिसत्व बनते गए. And these give us another source of strength. और यह बात हमें एक दूसरा, यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे तरीके की प्रेरणा या स्तोत्र को खोलता है. We may not ourselves yet be fully bodhisattvas. हो सकता है हम स्वयं पूर्ण बोधिसत्व ना हो. We may not yet ourselves have gone beyond self-clinging. हो सकता है हम लोग अपने स्वाशक्ति से मुक्त नहीं हुए हो. But we can be in relationship to those figures in the past who have attained this state. लेकिन वह जो व्यक्ति है जो बोधिसत्व हुए हैं, उनके प्रतिमाओं को, उनके आदर्शों से हम अपना संबंध जोड़ सकते हैं. I myself during these talks have been thinking about Baba Sahib, thinking about the Buddha. जब मैं यह प्रवचन मालिका दे रहा हूँ तो हम लोग बुद्ध और बाबा साहब के बारे में सोच रहे थे. And in thinking about them, I'm drawing from them the strength and the understanding to give these talks. तो उनसे मैं यह ऊर्जा अर्जित कर रहा था यह प्रवचन देने के लिए. And this gives you tremendous power, tremendous strength. और यह आपको अप्रतिम ऊर्जा देता है, शक्ति देता है. When you think of them, when you're connected to them imaginatively, well, you feel their power. तो जब आप उनको काल्पनिक तरीके से महसूस करते हो तब उनकी आप शक्ति का इस्तेमाल करते हो. They lift you beyond yourself. आपके स्व से वो आपको परे ले जाने की, ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं. So you हैं. experience yourself a little of that Boddhichitta. तो आप अपने आप में एक छोटा सा ऐसा बोधिचित्त का अनुभव करते हो. That Boddhichitta that animates them, that drives them. ऐसा बोधिचित्त जो प्रेरित करता है. And that begins to work in you. और वह बोधिचित्त जो उनको चलित जिसने रखा वह हम में काम करना शुरू करता है. So we're able to draw on the strength that they had. तो हम उस बल पर या उस ऊर्जा को अर्जित करते हैं जो ऊर्जा उनमें थी. So for instance, we're able to draw on Baba Sahib's words. जैसे बाबा साहब के शब्दों से हमें ऊर्जा मिलती है. We're able to draw on his example. उनके उदाहरण से, उनके जीवन से हमें ऊर्जा मिलती है. But we're able to draw on that force that Baba Sahib himself drew on. लेकिन हम उस बल को भी अर्जित करते हैं जिस बल के ऊपर स्वयं बाबा साहब काम करते थे. He drew that strength from the Buddha. उन्होंने वह बल बुद्ध से लिया है. He was able to manifest that spirit of enlightenment at a very high level. तो वह जो चेतना है संबोधि की, उसकी अभिव्यक्ति वो काफी उच्च स्तर पर बाबा साहब करते हैं. So this really is our final message. तो यही हमारा अंतिम संदेश है. Even in these very difficult times, we can draw on Boddhichitta. भले ही समय अभी कठिन है, उसके बावजूद भी यह जो बोधिचित्त का जो बल है, उस बल को हम वापस ला सकते हैं. We can think of Baba Sahib, we can think of the Buddha, we can think what their minds were like. हम बुद्ध के बारे में सोच सकते हैं, हम बाबा साहब के बारे में सोच सकते हैं कि उनके मन कैसे थे. We can even imagine them in front of us. आप उनकी कल्पना अपने आप आपके सामने कर सकते हो. When you imagine Baba Sahib, when you imagine the Buddha, you're in relationship to the mind that drove them. तो जब आप उनकी कल्पना करते हो, जब आप उनके बारे में सोचते हो, तो आप उनसे ऊर्जा अर्जित करते हो. You're drawing on the strength that they drew on. आप उस ऊर्जा को अर्जित करते हो जिस ऊर्जा को उन्होंने स्वयं अर्जित किया है. And that can give you the power to deal with these terrible circumstances. और यह आपको शक्ति देता है, यह जो इतनी बुरी जो परिस्थितियां है, विचित्र जो परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों के ऊपर काम करने के लिए. Without that, well, we can't do it. उसके अलावा हम नहीं कर सकते. If we are just concerned from our own point of view, well, we will just give up. तो हम अगर अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचे तो हम ज़्यादा टिक नहीं सकते, कहीं ना कहीं हम रुक जाएंगे. Or we'll fall into anger and violence. या फिर हमें गुस्सा आएगा
द्वेष आएगा और हम हिंसा प्रवृत्त करेंगे. We have to constantly lift ourselves up by connecting with bodhicitta through these great beings. हमें निरंतर अपने आप को ऊंचा उठाना है बोधिसत्व के स्तर तक ताकि हम निरंतर काम कर पाए. And that will give us the power to continue. और यह हमें बल देगा, साहस देगा आगे निरंतर चलते रहने के लिए. This is very, very important. यह काफी महत्वपूर्ण है. There's a very great Indian bodhisattva of the 6th century who spoke about this. एक महान छठे शताब्दी के भारतीय बोधिसत्व है जिन्होंने यह बात कही. His name was Acharya Shantideva. उनका नाम है आचार्य शांतिदेव. He was from Gujarat, from Saurashtra. सौराष्ट्र गुजरात से वो थे. Even from Junagadh, I think. शायद वो जूनागढ़ से थे. And he became a monk at Nalanda. नालंदा विश्वविद्यालय में वे भिक्षु बने. And he was a great poet. वे महान कवि थे. A great scholar. महान विद्वान थे. A great meditator. महान उन्होंने यानी साधनाएं की थी. And a bodhisattva. और वे बोधिसत्व थे. And he wrote a remarkable work called Bodhicharya Avatara. और उन्होंने बहुत ही अप्रतिम ऐसा काम किया है, लिखान किया है जिसे बोधिचर्या अवतार कहते हैं. Don't think of avatar in the other religious sense. अन्य धर्मों में जो अवतार होते हैं वैसा अवतार यह नहीं था. What it means in this context is entry into the life of Bodhi. यहाँ अर्थ केवल इतना ही होता है कि बोधि के जीवन में प्रवेश करना. It means entry into the bodhicitta. इसका अर्थ होता है बोधिचित्त में प्रवेश करना. It means becoming a bodhisattva. इसका अर्थ यह होता है कि बोधिसत्व बनना. And in very beautiful poetry, he teaches how you become a bodhisattva. और एक सुंदर काव्यात्मक स्वरूप से वह पढ़ाते हैं कि कैसे हम बोधिसत्व बन सकते हैं. At the beginning, he says something very, very, very important. इसके शुरुआत में ही वे काफी महत्वपूर्ण बात कहते हैं. He says the power of evil is very great. वो कहते हैं कि जो शैतानी जो शक्तियां हैं वह काफी महान है, बड़ी है. Evil is everywhere. क्योंकि शैतानियत जो है, बुराई जो है वो हर जगह है. Unskillfulness is everywhere. अकुशलता जो है वो हर जगह है. Greed, hatred and delusion are everywhere. लोभ मोह द्वेष हर जगह है. You just need to look at the newspapers. अब आप अपने अखबार खोल के देख लीजिए. Within our own countries and all over the world. हमारे देश में, अन्य देशों में. And of course there are good deeds done. और निश्चित ही कुछ अच्छाई भी हो रही है, अच्छे काम भी हो रहे हैं. There are good people in this world. अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं. There are good Buddhists. अच्छे बौद्ध इस दुनिया में हैं. There are good people from other religions too, all religions. सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं. There are good people from no religion. और जो लोग धर्मों को नहीं मानते हैं, ऐसे मान्यता रखने वालों में भी कुछ लोग अच्छे हैं. But their goodness is in many ways quite weak. लेकिन यह जो अच्छाई है, यह अच्छाई कई तरीके से दुर्बल है. That the natural force, that the power of greed, hatred and delusion are so strong. क्योंकि जो शक्तियां है लोभ मोह द्वेष की वह काफी प्रबल है. You do something good, but so much bad comes. आप कुछ अच्छाई करते हो, बहुत सारी बुराई उसमें आ जाती है. So it's very easy then to feel despair. तो इसलिए उसमें आशा रहित हो जाना, निराशा आशाहीन हो जाना काफी आसान है. Ordinary goodness is not enough. जो सर्वसामान्य अच्छाई है वह पर्याप्त नहीं है. Ordinary goodness is based on I. वह जो सर्वसामान्य अच्छाई है वह स्व के ऊपर आधारित है. I help you because I see that you're the same as me. मैं आपको इसलिए मदद करता हूँ क्योंकि आपको भी मैं मेरे जैसा ही देखता हूँ. I see that you suffer. When you suffer, it's painful. Yeah, you don't like it. क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब आपको पीड़ा होती है तो आपको जो पीड़ा हो रही है वह मेरी पीड़ा जैसी ही है. That's the same for me. वही मेरे साथ है. So I identify with you. तो मैं अपनी जो पहचान है, मेरी जो एकरूपता है, वह वो आपके साथ करता हूँ. That's the basis of ordinary goodness. वही
जो सर्वसामान्य अच्छाई है उसकी बुनियाद है। It's very good, it's wonderful. यह अच्छा है, यह बहुत अच्छी बात है। Some goodness is better than no goodness. जो अच्छाई है, कुछ तो भी, थोड़ी बहुत जो अच्छाई है वो अच्छाई नहीं होने से अच्छा है, But it's quite weak. लेकिन वह दुर्बल है। Because in the end, I am concerned about I. क्योंकि अंततः जो संबंध जो आता है वो मेरे साथ आता है। And eventually my goodness, my attempt to be good will be overwhelmed. और जो अच्छा होने के जो चरण है वो खत्म हो जाते हैं। For goodness to be really effective, it has to be underlain by bodhicitta. अगर अच्छाई को बहुत अच्छा होना है तो उसकी जो नींव है वह बोधिचित्त में होनी चाहिए। This has to be something that goes beyond self. यह ऐसी बात है जो स्व से परे जाती है। Then you can overwhelm, you can turn back evil. तभी जो शैतानियत जो ताकते हैं, जो बुरी ताकते हैं, उनका हम सामना कर सकते हैं। Because you're undefeatable. क्योंकि तब आप अजय हो जाते हो। You can only be defeated because ego is defeated. आपका पराजय इसलिए होता है क्योंकि आपके अहंकार का पराजय होता है। If you let go of self, well, what is there to defeat? अगर हमने स्व से मुक्ति पाली तो फिर किस बात की हार होगी? Compassion cannot be destroyed. करुणा का अंत नहीं हो सकता। So it's this compassionate mind of bodhicitta that we need to draw our strength from. तो यह जो करुणामय जो चित्त है, उस करुणामय चित्त से हमें हमारी ऊर्जा लेनी है। While we have not yet ourselves fully realized that bodhicitta, we need to draw on strength from those who have. जब तक हमने इस While we have not ourselves realized that bodhicitta in ourselves, we need to draw strength from those who have. जब तक इस बोधि चित्त को हम अपने आप में साक्षात्कार नहीं करते, हम स्वयं इसको पा नहीं लेते, तब तक हमें उन महान पुरुषों से ऊर्जा अर्जित करनी है जिन लोगों के पास यह बोधि चित्त है। So we need to draw on the Buddha, we need to draw on Baba Sahib and other great figures like Shantideva, like Asanga. तो इसीलिए ऐसे जो महान पुरुष है, बुद्ध, बाबा साहब या फिर असंग, शांतिदेव, इन लोगों से हम ऊर्जा अर्जित करते हैं। Even perhaps our own teachers who have something of that. या आपके अपने शिक्षकों से जिनके पास ऐसा कुछ होगा। And that gives us the strength to rise above this self. वह हमें शक्ति देता है हमारे स्व से ऊपर उठने के लिए। And that will enable us to keep going. और यह हमें निरंतर चलने के लिए मदद करेगा। Because that's what we have to do. यही हमें करना है। Even though circumstances maybe are getting worse, some might say. हो सकता है परिस्थितियाँ काफी बुरी हो, अधिक शैतानियत भरी होती जा रही हो। But despair is a selfish act. लेकिन आशा रहित होना, यह स्वार्थी काम है। And it has to be brushed aside by bodhicitta. और इस स्वार्थ को साफ करने के लिए बोधिचित्त की ही आवश्यकता है। So, brothers and sisters, every one of us needs to work to become a bodhisattva. तो भाई और बहनों, हम में से हर व्यक्ति के लिए बोधिसत्व होने की आवश्यकता है। Then we will tirelessly work to change the world. तभी हम बिना थकान के निरंतर अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। Then we will follow the Buddha's way. और तभी जो बुद्ध का मार्ग है, उस मार्ग पे हम आरूढ़ होंगे। The way that Dr. Baba Sahib Ambedkar had unshakable faith in. ऐसा मार्ग जिसके ऊपर अचल निष्ठा बाबा साहब की थी। The way that consists in the changing of the mind of individuals. ऐसा मार्ग जो व्यक्तियों को बदलने के लिए अनुकूल है। And then if we change the mind of enough individuals, society will change. और अगर हमने पर्याप्त मात्राओं में व्यक्तियों के मन परिवर्तित किए तो फिर समाज बदलेगा। And liberty, equality and fraternity will genuinely flourish. और लिबर्टी, समता, स्वतंत्रता और बंधुता जो है वह सही मायने में
खिलेगी। So, dear brothers and sisters, thank you very much indeed for listening to these talks. तो भाई और बहनों, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ यह प्रवचन मालिका सुनने के लिए। Thank you, Maitriveer Nagarjuna, for translating for me. मैत्रीवीर नागार्जुन का मैं धन्यवाद देता हूँ यह मालिका भाषांतरित करने के लिए। A very difficult task. यह काफ़ी कठिन काम है। And I hope that you will have absorbed the main message. मैं सुबुति का भी धन्यवाद करता हूँ यह मालिका देने के लिए। I hope you will have absorbed the main message. और मैं आशा करता हूँ कि जो मुख्य संदेश मैंने दिया है उसको आप शायद आत्मसात किए होंगे। And I hope that you will put it into practice. और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको आचरण में रखेंगे। Namo Buddhaya, Jai Bhim. नमो बुद्धाय, जय भीम।